Good morning, class 6th. So, we have started this lesson after 20 years, section 3 of unit 6. So, in this story, after 20 years, this is a story of two friends, right? They are going to meet. It focuses on the reunion of the two friends, Jimmy and Bob, and through their brief encounter, the two explore the themes of friendship, loyalty, and trust. So perhaps Bob's punctuality in keeping his meeting with Jimmy's perhaps best demonstrates his loyalty to their friendship. So this is a story of the reunion of two old friends. One's name is Jimmy and the other's name is Bob, and they are going to meet after 20 years. So they are born and brought up here at the New York, and after that they separated 20 years before at the same place. So just to try their luck, so both of them they went their sides, and after 20 years, after a long period of 20 years, they were going to meet here at the same place at the time they have set. So the here in the starting of the story, the scene is that a policeman is moving up in the avenue impressively. He's just moving means checking out the avenue impressively, and the impressiveness was a habitual means एक policeman की दिखा रहे हैं that how he is moving and keeping an eye on all the things going around him. The impressiveness of his like the gait and the uniform and the way he's moving is it's habitual. It is not just to show the impressiveness of the um, his job or his profession. It is habitual. It is not for the show. And for the spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night. और रात के 10 बज चुके थे, एंड काफ़ी ज़्यादा चिली वहाँ पे विंड्स जो हैं, chilly wind was blowing, so with the taste of rain in them, and there was a light drizzle also had well nigh enveloped the streets. Means puri streets mein there was water and water, because chill breeze was also blowing, and the rain was the light downpour of drizzle was also there, so streets were enveloped with the water, that rainwater. So trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now and then to cast his watchful eye down the Pacific thoroughfare, the officer, with his stalwart form and slight swagger, made a fine picture of the guardian of the peace. So this policeman is trying doors as he went. Means वो एक एक डोर ओपन करके देख रहा था. Twirling his club means उनके हाथ में जो होता है ना, उसको वो घुमाता हुआ जा रहा था क्लब को. With many intricate and artful movements means बड़ी lightly वो अपने क्लब को घुमाता हुआ, बड़ी artfully, skillfully he was just moving and trying out the doors, turning now and then to cast his watchful eye, and he was keeping an eye on the इवेंट्स और द वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड हिम, उस पर भी उसका नज़र थी. डाउन द पैसिफिक थॉरोफेयर मीन्स इट इज़ द प्लेस ऑफ दैट एरिया, नेम ऑफ दैट एरिया. The officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of guardian of peace. Means वहाँ पे he was feeling as if, means the image he was giving was that he has not come there to just do some violent encounter. He was just keeping an eye and just trying to find something, right? So there he has come as a guardian of peace, means peacefully वो अपना काम कर रहा था. Vicinity was one that kept early hours, and now and then you might see the lights of cigar store of an all night lunch counter. So the vicinity is the area around. So that area that kept early hours means वो early hours तक एरिया जो है ओपन रहता था, और वहाँ पे आप लाइट्स देख सकते थे. अक्सर सिगार स्टोर था वहाँ पे एक, क्योंकि लोग आते रहते थे, तो सिगार स्टोर की लाइट्स भी ऑन रहती थी. एंड देयर वाज एन ऑल नाइट लंच काउंटर ऑल्सो. एक लंच काउंटर था जहाँ पे लोग
देर रात तक भी आके अपना फूड जो है ऑर्डर करके ले जाते थे. बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू द बिजनेस प्लेसेस. बट जो मेजॉरिटी ऑफ डोर्स थे दैट बिलोंग टू द बिजनेस प्लेसेस एंड दैट हैड अ लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड, जो कि अब बंद हो चुके थे. बिजनेस प्लेस के थे मेनली डोर्स जो अभी क्लोज्ड थे. सो व्हेन अबाउट मिड डे ऑफ अ सर्टन ब्लॉक द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक. सो जब वो ब्लॉक की बिल्कुल मिड में पहुंचे ना, मिड वे ऑफ द सर्टन ब्लॉक, द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक. तो पुलिसमैन जो था एकदम चलता चलता ही स्लोड हिज वॉक मीन्स वो रुक गया वहाँ पे. इन अ डोरवे ऑफ अ डार्कन्ड हार्डवेयर स्टोर अ मैन लीन्ड. तो इन अ डोरवे ऑफ डार्कन्ड हार्डवेयर स्टोर, वहाँ पे एक हार्डवेयर स्टोर था, वहाँ पे बहुत डार्कनेस थी. सो देयर वॉज अ मैन लीन्ड विद अ अनलेट सिगार इन हिज माउथ. लीन्ड मीन्स थोड़ा झुका हुआ था. ये देयर वॉज स्टैंडिंग अ मैन देयर विद अ सिगार. अनलेट मीन्स उसने अभी सिगार को लाइट नहीं किया था और वो थोड़ा झुका हुआ था. विद एन अनलिट सिगार इन हिज माउथ, उसके माउथ में एक अनलिट सिगार थी, जिसको देखते ही जो पुलिस मैन है, पुलिस ऑफिसर है, वो थोड़ा रुक गया. उसकी जो वॉक थी वो थोड़ी स्लो हो गई. एज द पुलिसमैन वॉकड अप टू हिम द मैन स्पोक अप क्विकली. तो जैसे ही पुलिसमैन उसके पास पहुंचा तो उसने अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी. दैट मैन ही सेड इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड रीअश्योरिंगली. तो जैसे ही ऑफिसर वहाँ पे पहुँचा तो उसने अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी. दैट मैन दैट वाज स्टैंडिंग देयर विद अ cigar, he said everything is all right officer, I am just waiting for a friend, it is an appointment made 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you'd like to make certain it's all straight. So he says, he tries to explain that why he's standing here in that darkened hardware store. So he told the policeman that he is standing there to just make an appointment with his friend which they have made 20 years ago, and he is waiting for his friend. It's quite sounds very funny, but I'll explain if you'd like to make certain. आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर अगर आप चाहें तो मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ. अबाउट दैट लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट वेयर द स्टोर स्टैंड्स, जो ब्रैडी रेस्टोरेंट. सो ही स्टार्ट्स टेलिंग दैट लॉन्ग अगो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट होता था जिसका नाम था जो ब्रैडी रेस्टोरेंट. Until 5 years ago, that said the policeman, it was toned down then. तो उसने until 5 years ago, तो पुलिसमैन कहते हैं कि हाँ 5 years पहले तक था. इट वॉज टोन डाउन देन, फिर वो उसके बाद तोड़ दिया गया. टोन डाउन मीन्स खराब, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया. द मैन इन द डोरवे स्ट्रक अ मैच एंड लिट द सिगार. तो जो मैन वहाँ खड़ा था उसने अपनी मैच स्टिक जलाई और अपनी जो सिगार है उसको लिट किया. द लाइट शोड अ पेल स्क्वायर जॉड फेस एंड विद द कीन आइज. तो जैसे ही वो सिगार उसने लिट की, जैसे मैच स्टिक उसने जलाई, तो लाइट होती है ना, उस लाइट में उसका चेहरा नज़र आया. इट शोड अ पेल स्क्वायर जॉड फेस. पेल मीन्स हल्का येलोइश, राइट. स्क्वायर जॉड मीन्स उसका काफ़ी ब्रॉड जॉ था नीचे से, जैसे. विद अ कीन आइज मीन्स बहुत ही आइज़ भी जो थी उसकी बहुत ही सीरियस सी आइज़ थी. एंड अ लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो. तो उसकी राइट आईब्रो के नीचे एक छोटा सा वाइट कलर का स्कार था, मीन्स एक निशान था. हिज स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड ऑडली सेट. और उसने गले में जो कोट के नीचे जो हम स्कार्फ लगाते हैं, वहाँ पे जो पिन लगाया हुआ था उसने, स्कार्फ पिन, इट वॉज अ लार्ज डायमंड. बहुत बड़ा डायमंड लगा हुआ था उसके स्कार्फ पिन पे. ऑडली सेट, right. 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe Brady. So he started telling कि 20 years पहले मैंने यहाँ पे रात को खाना खाया था at Big Joe Brady with Jimmy Wells. मैंने यहाँ पे जिमी वेल्स, जो कि मेरा फ्रेंड है जिसकी मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ डाइन मीन्स आई डाइंड हियर, मैंने डिनर किया था. विद माई बेस्ट चम इज़ योर क्लोज फ्रेंड एंड अ फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड. मीन्स बहुत अच्छा इंसान है वो जो मेरा फ्रेंड है. मैंने और उसने यहाँ पे 20 साल पहले खाना खाया था. ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क. ही एंड आई मीन्स वो हम दोनों यहाँ न्यूयॉर्क में, रेज्ड मीन्स पले बड़े हैं. जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर, हम दोनों यहाँ पे बिल्कुल दोनों भाई की तरह
We have been raised here in the New York. I was 18 and Jimmy was 20. So he told that कि उस वक्त मैं 18 years का था, Jimmy 20 years का था. The next morning I was to start for the West to make my fortune. So the next day he told that the day before we had dined together in that Joe Brady restaurant, and next day I was about to start for the West to make my fortune. और अगले दिन सुबह मैं वेस्ट में निकल रहा था अपनी लक को ट्राई करने कि कुछ काम शायद मुझे वहाँ मिल जाए. टू मेक माई फॉर्चून मीन्स अपनी किस्मत आजमाने में वेस्ट में जा रहा था. यू कुडंट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क. सो ही सेड कि आप जिमी को तो यहाँ से निकाल ही नहीं सकते. ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, क्योंकि जिमी को न्यूयॉर्क ही सबसे अच्छा लगता था, तो वो कहीं नहीं जा रहा था. एंड आई वॉज गोइंग टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून. मैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग निकल रहा था वेस्ट के लिए. सो वी कुडंट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क. ही सेड कि जिमी को आप न्यूयॉर्क से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उसको लगता था कि अर्थ पे सिर्फ एक यही प्लेस है. वेल वी एग्रीड दैट नाइट दैट वी विल we agreed that night that we would meet here again 20 years from that date and time. और हमने उस दिन उस रात को हमने ये डिसाइड किया था कि हम 20 years के बाद यहाँ फिर इसी डेट पे इसी टाइम पे मिलेंगे. नो मैटर वॉट आर कंडीशंस माइट बी, जो भी हमारी कंडीशंस हो, हम 20 years के बाद आज ही के दिन आज ही के टाइम 10 बजे हम यहाँ पे मिलेंगे, जो भी हमारी कंडीशंस हों. फ्रॉम वॉट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, चाहे हम किसी भी वर्ल्ड में किसी भी जगह पे हों या हमारे कैसी भी कंडीशंस हो, वी आर गोइंग टू मीट हियर at the same day and time after 20 years, and that is day. Today is that day. We figured that in 20 years each of us ought to have a destiny worked out. So he said कि मुझे उम्मीद है कि इन 20 years में हमने बहुत कुछ हमारी जो है डेस्टिनी ने, फेट ने काम किया होगा, एंड आवर फॉर्च्यून्स मेड वट एवर दे वर गोइंग टू बी. ही बिलीव दैट कि इन 20 सालों में बहुत फ़र्क पड़ गया होगा. हम दोनों ने खूब फॉर्च्यून मीन्स अपनी किस्मत आजमाई और बहुत सारी जो किस्मत है वो काम भी करी. वी हैव मेड आवर फॉर्च्यून्स मीन्स हमने खूब पैसा भी कमाया. आई विश सो कि उसने भी ऐसा ही किया होगा, वट एवर दे वर गोइंग टू बी. सो इट साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग. तो पुलिस मैन सुनता है उसकी बात, कहता है कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लग रही है मुझे. रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स थॉट इट सीम्स टू मी. सो ही सेड कि रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स thought it seems to me, haven't you heard from your friend since you left? So the policeman asked कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया आप लोगों को मिले, and you are going to meet after 20 years, so haven't you ever tried to meet him in between? कि तुम कभी बीच में नहीं मिले 20 years में, पहले तुमने कभी कोशिश नहीं की मिलने की, क्या तुमने उससे कभी बात नहीं की इन 20 years में? Well, yes, for a time we corresponded. ही सेड कि कुछ टाइम के लिए जब हम यहाँ से बिछड़ गए, हम एक दूसरे से दूर चले गए, तो हमने कॉरस्पॉन्ड मीन्स वी ट्राई टू राइट लेटर्स, हमने एक दूसरे को लेटर्स लिखी फॉर सम टाइम, बट आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर. बट एक साल के बाद हम एक दूसरे का मीन्स हम अपने अपने काम में इतने बिजी हो गए कि हमने लेटर्स लिखने भी छोड़ दिए. वी वर सो बिजी इन आवर थिंग्स, आवर वर्क, आवर लाइफ. You see, the West is pretty big proposition. So he said कि after an year of this correspondence, then we lost track of each other. We were busy in our own lives. And he told that West is a pretty big proposition. Means West में मैं जब गया था अपनी किस्मत आजमाने, तो वहाँ पे इतना सारा means इतने स्कोप थे मेरे लिए कि I just kept hustling around over it pretty lively. तो मैं वहाँ पे अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गया. But I know Jimmy will meet me here if he is alive. But he was very sure that Bob, that man with a cigar, he said कि I am very much sure that my friend will come here to meet me if he is alive. For he always was the truest, staunchest old chap in the world. क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो ज़िंदा है तो he will definitely come to meet me here because he is the truest
सबसे सच्चा और staunchest means I know that he is very much faithful to me. Staunchest means here means a flow of blood from chest means मेरे को उस पर इतना विश्वास है that what may that he will definitely come to meet me. He is my true friend. He will never forget. I came 1,000 miles to stand in this store tonight. It's worth it if my old partner turns up. So he says कि I have also come here from the 1,000 miles. मैं भी तो इतनी दूर से उसको मिलने आया हूँ. And I am sure that my friend will definitely come to meet me here. So I don't think कि मेरा यहाँ आना बेकार जाएगा. It's worth it. अगर वो बहुत बड़ी बात है कि मेरा यहाँ आना इतनी दूर से बेकार नहीं जाएगा, because I'm very much sure that my friend will definitely come to meet me here after 20 years. The waiting man pulled out a handsome watch. तो थोड़ी देर में उसने जो that man with a cigar, he pulled out a handsome watch. उसने अपनी वॉच निकाली बाहर. The lid of it set with the small diamonds. तो उसकी जो lid थी वॉच की, उस पर छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे बहुत सारे. Right? There were small diamonds. 3 minutes to 10. He said कि अब 3 मिनट रह गए 10 बजने में. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. So he said कि अब 3 मिनट बचे हैं 10 बजने में, and it was exactly 10 o'clock. 20 years पहले exactly 10 बजे थे जब हम यहाँ से पार्ट हुए थे, मीन्स जब हम यहाँ से अलग हुए थे. Did pretty well out west, didn't you? So the policeman उसको देख के बोलता है कि लगता है कि वेस्ट में आपने काफ़ी कुछ आपके लिए अच्छा रहा है. मीन्स यू हैव मीन्स इट वर्कड आउट वेरी वेल फॉर यू कि तुमने वेस्ट में तुम गए, वहाँ पे तुमने अपना फॉर्च्यून आजमाया, एंड तुमको देख के लगता है कि तुमने वहाँ पे काफ़ी अच्छा कमाया है. Did pretty well out west. You bet. Hope Jimmy has done half as well. So when the policeman asked him that आपको देख के लगता है that you have done very well in the west, so he said, the man in return, he replied that yes, you bet. Hope Jimmy has done half as well. कि जिमी ने भी जितना मैंने किया कमाया है उससे आधा उसने भी कमाया हो, इतना उसने भी earn किया हो. He was a kind of plodder. Means उसको वो बोलता है कि पुलिसमैन को कि आई होप कि मेरे फ्रेंड ने भी जितना मैंने कमाया उससे आधा कमा लिया हो, क्योंकि ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लॉडर दो गुड फेलो एज ही वॉज. ही सेड कि ही वॉज अ प्लॉडर मीन्स ही वॉज अ वेरी स्लो टाइप ऑफ पर्सन, walk slowly with heavy steps. So here he is describing it like a plodder, means like he wants to say that that his friend of his was a very slow man, a man with a heavy steps. So good, he was a good fellow. He told the policeman that he's a very good fellow. I had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. So he said, the friend of mine is a very good fellow. Though he was a bit slow man, I have to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. He said कि मुझे अपना काम निकलवाने के लिए कई बार बहुत ही मीन्स मुझे बहुत क्लेवर अपने क्लेवरेस्ट तरीक़ों से अपनी शार्पेस्ट विट से उन चीज़ों को मीन्स लाइक ही वॉन्ट टू से दिस कि मुझे कई बार बहुत ही चालाकी से अपना काम निकलवाना पड़ता था, क्योंकि मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यू यॉर्क, इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम, मीन्स इट वॉज नॉट वेरी ईजी फॉर मी टू अर्न दिस मच. मैंने जो कमाया है बहुत, मैंने कई बार बीच में बहुत हार्डशिप्स भी झेली हैं, मुझे बहुत चालाकी से काम करना पड़ा है कि इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग टू अर्न दैट मच. ही ट्राइज टू से दिस थिंग. The policeman twirled him club and took a step or two. I'll be on my way. तो इतना कह के पुलिसमैन उसकी बात सुनता है. He said कि okay, I have to go. Twirled his club means उसने जो उसके हाथ में क्लब था उसको घुमाया, और he said कि okay, I have to go. I'll be on my way. Hope your friend comes all round right. Going to call time on him sharp. So he said कि okay ठीक है मैं चलता हूँ, as I have to move on. So I hope that your friends come and you meet.
right? Going to call time on him sharp. So he says ki, I hope your friends come in time. I should say not, said the other. I'll give him half an hour at least. So policeman ऐसा जब बोलता है कि I hope your friend comes in time, he says कि I will give him half an hour. More means I will wait there for half an hour, because if Jimmy is alive on earth, he'll be here by that time. So long, officer. So he said कि after 20 years we are going to meet, and I am hopeful, very much sure, that my friend will come to meet me here. So for him I will wait a half an hour more here, because if he is alive on this earth, he will definitely come to meet me. Good night sir, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. तो उसके बाद पुलिसमैन ने उसको गुड नाइट विश किया. आई सेड ओके, गुड नाइट सर, आई होप दैट योर फ्रेंड कम्स एंड यू मीट, योर मीटिंग गोज वेल. सो ही स्टार्टेड मूविंग, ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट. और वो फिर से अपना जैसे काम कर रहा था. ही वॉज ट्राइंग डोर्स मीन्स ही वॉज ओपनिंग द डोर्स एंड चेकिंग मतलब वो जो अपना काम कर रहा था पेट्रोलिंग का. पुलिसमैन उसको गुड नाइट विश करके आगे चला गया. ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, जैसे वो अपना काम कर रहा था. देयर वॉज नाउ अ फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग. उसके बाद वहाँ पे ठंडी ठंडी एक ड्रिजलिंग मीन्स हल्की बारिश होनी स्टार्ट हो गई. एज इट वॉज अ विंटरी नाइट, इट वॉज वेरी चिली. सो द ड्रिजल ऑल्सो स्टार्टेड फॉलिंग एंड द विंड हैड राइजन फ्रॉम हिज अनसर्टन पफ्स इनटू अ स्टेडी ब्लो. और जो विंड थी, कोल्ड ब्रीज थी, वो भी बहुत थोड़ी तेज़ हो गई. The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and into a steady, silently along with the coat collars turned high and pocketed hands. तो कुछ लोग वहाँ पे और खड़े थे. फुट पैसेंजर्स अस्टर इन दैट क्वार्टर, हरिड डिसमिली मीन्स वहाँ पे जो और 2-3 पैसेंजर्स खड़े थे वो भी इधर उधर हो गए, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड इट वाज ऑलरेडी वेरी कोल्ड दैट नाइट. तो वो इधर उधर हो गए और उनके जो कोट के कॉलर्स थे वो सीधे खड़े थे. मीन्स हम जैसे नेक से ऊपर कर लेते हैं ना कॉलर्स, बिल्कुल अपने ईयर्स के साथ उन्होंने भी अपने कॉलर्स वैसे ही किए हुए थे. टर्न हाई एंड उनके जो हैंड्स थे वो पॉकेट्स में थे, क्योंकि बहुत ठंड थी और हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही थी. तो एवरीबडी वॉज देयर वॉकिंग साइलेंटली विद द कोट कॉलर्स टर्नड हाई. उनके जो कॉलर्स थे ऊपर हुए हुए थे और जो उनके हैंड्स थे पॉकेट्स में थे. एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1,000 miles टू फिल एन अपॉइंटमेंट, अनसर्टन अबाउट ऑलमोस्ट टू absurdity, with a friend of his youth, smoked his cigar and waited. और वहीं पे ये जो मैन था, ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर. 1,000 miles, वो 1,000 miles क्रॉस करके यहाँ पे आया था अपने फ्रेंड को मिलने. एक तरह से अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि ही वॉज़ वेरी मच श्योर कि मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आएगा. इट वॉज़ ऑलमोस्ट टू एब्सर्डिटी मीन्स उसको थोड़ा अगर कोई सुने तो ये थोड़ी अजीब बात लगती है कि आफ्टर 20 years हो सकता है उसके फ्रेंड को याद भी ना हो, बट उसे याद था और वो अपने फ्रेंड की वहाँ वेट कर रहा था इतनी ठंडी ठंडी विंटर में विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ. एंड ही स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेटेड एंड ही वॉज वेटिंग देयर फॉर हिज फ्रेंड. So for today this is quite enough. So you go through the lesson and check out the meanings. So I will give you the word meanings after explaining this lesson overall full. So you try to read the lesson and find out. If you find any words difficult, you can find it out the meaning of the words in the dictionary. So you try to do this thing yourself. Okay, so we will discuss the lesson later in the next lecture.